Hello listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, Welcome to this very special and important broadcast. इस बहुत ही खास और महत्वपूर्ण प्रसारण में आपका स्वागत है। It is the last in a series of broadcasts on the blessings of surrender. समर्पण की आशीषें की प्रसारण श्रृंखला का ये अंतिम कार्यक्रम है। Last time I promised to tell you what God did to the Israeli general who made mockery of the man of God. पिछली बार मैंने आपको बताने का वायदा किया था कि परमेश्वर ने उस इस्राएली सेनापति के साथ क्या किया जिसने परमेश्वर के जन का मजाक उड़ाया था। What did he do? उसने क्या किया था? Well, God first sent fear into the hearts of the Syrians. खैर, सबसे पहले परमेश्वर ने अरामियों के हृदयों में भय डाल दिया। And they were soon running like rabbits. और जल्द ही वे खरगोशों की तरह भाग रहे थे। They left everything behind. उन्होंने सब कुछ वहीं छोड़ दिया। Not only their food and their drink, केवल अपना भोजन पानी ही नहीं, but their clothes, their gold and their silver. लेकिन अपने कपड़े, सोना और चांदी सब वहीं छोड़कर भाग गए। In verse 3 of 2 Kings chapter 7, दूसरे राजा 7 अध्याय के 3 पद में we read that there were 4 lepers outside of the city wall. हम पढ़ते हैं कि शहर की दीवार के बाहर 4 कोढ़ी थे। The Jewish people sent the lepers outside of the community, यहूदी लोगों ने कोढ़ियों को समाज से बाहर निकाला हुआ था, outside of the gate of Samaria. सामरिया के फाटक के बाहर। Lepers were put in a house outside of the city which was called the house of the unfortunate. कोढ़ियों को शहर के बाहर एक मकान में छोड़ दिया जाता था जिसे बदकिस्मतों का घर कहा जाता था। Leprosy was repugnant to the Jews, कोढ़ का रोग यहूदियों के लिए घृणास्पद था, not merely because it was contagious, but because it represented the ugliness of sin. केवल इसलिए नहीं क्योंकि ये छूत का रोग था, लेकिन क्योंकि ये पाप की गंदगी को प्रदर्शित करता था। The leper was a sinner and his life was a living death. कोढ़ी एक पापी होता था और उसका जीवन एक जीवित मृत्यु थी। And that is why we read that only Jesus touched lepers. और इसीलिए हम पढ़ते हैं कि केवल यीशु ने ही कोढ़ियों को छुआ। Why? क्यों? Because he is our sin bearer. क्योंकि वो हमारे पाप उठाने वाला प्रभु है। You and I were spiritual lepers, आप और मैं आत्मिक रूप में कोढ़ी थे, but God loved us. लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्यार किया। God touched our hearts and God convicted us. परमेश्वर ने हमारे हृदयों को छुआ और हमें इसके लिए दोषी पाया। God cleansed us and forgave us. फिर परमेश्वर ने हमें शुद्ध किया और क्षमा कर दिया। These 4 lepers were the first to discover the good news. यही 4 कोढ़ी थे जिनको सबसे पहले खुशखबरी मिली। How did it happen? ये कैसे हुआ? Well, they were starving to death in their house of isolation. खैर, वो अपने निष्कासित घर में भूखमरी से मर रहे थे। Normally someone would come out of the city and push the food through a hole in the wall. आमतौर पर कोई न कोई शहर से बाहर आकर दीवार में बने एक छेद में भोजन डालकर बाहर की तरफ धकेल देता था। But because the people were not able to come out of the city, लेकिन क्योंकि लोग शहर से बाहर नहीं आ पा रहे थे, the lepers were not getting any food. इसलिए कोढ़ियों को कोई भोजन नहीं मिल रहा था। They were the first ones to suffer. कष्ट से गुजरने वाले सबसे पहले वही थे। They began to detect that something was wrong. उन्होंने पता लगाना शुरू किया कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। So out of desperation, the 4 lepers came out of the house of imprisonment. सो निराशा के कारण वो चारों कोढ़ी कैद के अपने घर से बाहर निकले। Out of desperation, they were willing to throw themselves at the mercy of anyone. निराशा के कारण वो अपने आप को किसी की भी दया पर छोड़ने के लिए तैयार थे। How true this is in our lives. हमारे जीवनों में ये कितना सत्य है। When people came to the end of themselves and their inadequacy, जब लोग अपने और अपनी अपर्याप्तता के अंत पर पहुंचते हैं, when they get to the end of their resourcefulness, जब वे अपनी साधन संपन्नता के अंत पर पहुंचते हैं, when they begin to seek God out of desperation, जब वो निराशता के कारण परमेश्वर को खोजना शुरू कर देते हैं, they will find God. तो वो परमेश्वर को ढूंढ लेंगे। God is not only ready to receive them and to bless them, but also to save them. परमेश्वर केवल उनको स्वीकार कर आशीषित करने के लिए ही तैयार नहीं है, बल्कि बचाने के लिए भी तैयार है। You may be in that place in your life right now.
हो सकता है आप इस समय अपने जीवन में ऐसे ही स्थान में हों। You may feel that no one seems to understand you. शायद आपको लगता हो कि कोई आपको नहीं समझता। You may feel that no one seems to care about you. शायद आप महसूस कर रहे होंगे कि किसी को आपकी चिंता नहीं है। Things may be falling apart in your life, and in desperation you start listening to this broadcast today. आपके जीवन में शायद सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है और निराशा की दशा में आज आपने ये प्रसारण सुनना शुरू किया होगा। God is calling you because He loves you. परमेश्वर आपको बुला रहा है क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। God has a blessing and a feast in store for you. परमेश्वर के पास आपके लिए आशीष और दावत है। Will you throw yourself at His mercy today? क्या आज आप अपने आप को उसके अनुग्रह के सुपुर्द करेंगे? It will be the only decision that is worth making in life. केवल यही एक फैसला होगा जो जीवन में मूल्यवान है। All other decisions pale in comparison. इस फैसले की तुलना में बाकी सब फैसले फीके हैं। Let's look again at 2 Kings. आइए फिर से दूसरे राजा की पुस्तक में देखें। These lepers were looking for salvation in the camp of the Syrians. वो कोढ़ी अरामियों के शिविरों में उद्धार ढूंढ रहे थे। However, they made the greatest discovery of their life. कुछ भी हो, उन्होंने अपने जीवन की उत्तम खोज की। As these lepers began to tiptoe around the first tent, जैसे ही ये कोढ़ी दबे पांव पहले तंबू के पास गए, they found that nobody was there. उन्होंने देखा कि वहां तो कोई नहीं है। The tent was full of food. पूरा तंबू भोजन से भरा हुआ था। So they did not ask any questions, they just ate. सो उन्होंने कुछ नहीं पूछा, केवल खाया। Then they went to the next tent. फिर वो अगले तंबू में गए, Then the next tent. फिर अगले तंबू में, Then the next tent. फिर उससे अगले तंबू में। It is hard to imagine the excitement that the poor lepers must have experienced. उस उत्तेजना की कल्पना करना भी कठिन है जिसका अनुभव इन गरीब कोढ़ियों ने किया होगा। This was the biggest feast of their lives. ये उनके जीवन की सबसे बड़ी दावत थी। But the challenge that this passage presents to everyone who knows the Lord Jesus Christ is this. लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए वचन के इस हिस्से में चुनौती ये है। Listen to what was said in verse 9 of 2 Kings chapter 7. सुनिए दूसरे राजा 7 अध्याय के 9 पद में क्या कहा गया। They said to one another, उन्होंने एक दूसरे से कहा, We are not doing right. This day is a day of good news. If we are silent and wait until morning light, हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये आनंद के समाचार का दिन है। यदि हम चुप रहे और सुबह तक रुके रहे punishment will overtake us. तो हमें दंड मिलेगा। Now therefore come and let us go and tell the king's household. इसलिए अब आओ राजा के घराने को ये बतला दें। Listen to this sentence very carefully. इस वाक्य को बहुत ध्यान से सुनिए। We are not doing right. हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। They have seen the good news. उन्होंने खुशखबरी को देख लिया। They have experienced the fulfillment of God's promise. उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा के पूरा होने का अनुभव कर लिया है। They have been privileged to participate in God's blessings while the rest of the community was starving to death. उनको परमेश्वर की आशीष में सम्मिलित होने का आदर दिया गया, जबकि बाकी पूरा समाज भूख से मर रहा था। They could have made many excuses. वो कई बहाने बना सकते थे। They could have said, वो कह सकते थे, They threw us out of the city. Why should we tell them? उन्होंने हमें नगर से बाहर फेंका हुआ है, हम उन्हें क्यों बताएं? They deserve their death. वो अपनी मृत्यु के हकदार हैं। They treated us badly. Why should we tell them? उन्होंने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया, हम उन्हें क्यों बताएं? We could keep it all to ourselves and then they would stop rejecting us. ये सब कुछ हम अपने पास रख सकते हैं और फिर वो हमें अस्वीकार करना बंद कर देंगे। Or I could imagine that one of the four might have come up with some brilliant idea about how to handle all the blessings. या मैं ऐसी कल्पना कर सकता हूं कि शायद उन चारों में से किसी एक ने सारी आशीष को संभालने का बहुत ही अच्छा सुझाव दिया होगा। One of them could have said, उनमें से एक ने कहा होगा, Well, what we need to do first is to take care of ourselves, then we can announce the good news. खैर सबसे पहले हमें अपनी देखभाल करने की जरूरत है और फिर हम खुशखबरी की सूचना दे सकते हैं। Or another may have said, या दूसरे ने कहा होगा, We need to strengthen ourselves first and then tell them the good news. सबसे पहले हमें अपने आप को तगड़ा करने की आवश्यकता है और फिर उनको ये खुशखबरी सुनानी चाहिए। Or they could have said, या वो कह सकते थे,
We should have a retreat on how to articulate the message first. सबसे पहले हमें एक छोटी सी सभा करनी चाहिए कि खुशखबरी को स्पष्टता से कैसे बताया जाए। After all, the Jews inside the besieged city wall won't believe us right away. आखिर शहर की दीवार के अंदर घिरे हुए यहूदी तुरंत तो हम पर विश्वास नहीं करेंगे। Or they could have said, या वो कह सकते थे, let us form a committee on how should we go and tell. आओ एक समिति बनाते हैं कि जाकर कैसे बताया जाए। After all, this is a serious matter we're talking about. आखिर जिस पर हम बात कर रहे हैं वो एक गंभीर मसला है। You understand what I'm trying to say. आप समझते हैं जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। In 2000 years of Christian history, 2000 साल के मसीही इतिहास में no group of Christians have had more abundant spiritual food than the Christians of today. किसी मसीही समाज के पास इतना अधिक आत्मिक भोजन नहीं था जितना आज के मसीहियों के पास है। And I believe Jesus expects more of us than just lip service. और मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु हमसे केवल हमारे होठों की सेवा से अधिक की आशा करता है। To whom much is given, much is required. जिसे जितना अधिक दिया जाता है उससे उतने अधिक की जरूरत है। If you are a believer in Jesus Christ, please listen carefully. यदि आप यीशु मसीह में विश्वासी हैं, कृपया ध्यान से सुनिए। You do not have to begin to get ready to start to learn to be equipped to tell the good news. आनंद का समाचार सुनाने के लिए आपको तैयार होना सीखने की आवश्यकता नहीं है। The good news tells itself. आनंद का समाचार स्वयं अपनी घोषणा करता है। You make the decision and commitment to tell the good news. खुशी का समाचार सुनाने के लिए आप केवल फैसला और समर्पण कीजिए And God will do the rest. और बाकी काम परमेश्वर करेगा। You say to yourself, आप खुद से कहें, I am not doing right, and begin to speak. कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ और बोलना शुरू करें And God will give you the words. और परमेश्वर आपको बोलने के लिए शब्द देगा। I have a very precious friend who has a very simple message. मेरा एक बहुत मूल्यवान मित्र है जिसके पास एक बहुत साधारण सा संदेश है। He will say to a person, वो व्यक्ति से कहता है, would you watch your son die for a criminal? क्या तुम अपने पुत्र को एक अपराधी के लिए मरते हुए देख सकते हो? Of course, the answer is no. उत्तर निश्चय ही ना होगा। That's what God did for me. यही परमेश्वर ने मेरे लिए किया। It is so simple and yet so profound. ये बहुत साधारण है लेकिन फिर भी बहुत गहरा है। Some of you might say, आप में से कुछ कहेंगे, I don't have the gift to evangelize. मेरे पास सुसमाचार प्रचार का वरदान नहीं है। Fine, what gift do you have? ठीक है, तो फिर आपके पास कौन सा वरदान है? Do you have the gift of prayer? क्या आपके पास प्रार्थना का वरदान है? Then intercede for the lost. तो फिर खोए हुओं के लिए मध्यस्थता कीजिए। Do you have the gift of giving? क्या आपके पास दान देने का वरदान है? Then give generously to reach the lost. तो फिर खोए हुओं तक पहुंचने के लिए उदारता से दीजिए। Do you have the gift of mercy? क्या आपके पास दया का वरदान है? Then express it and use it, and God will bring people to the kingdom through you. तो इसे प्रकट कीजिए और इसका प्रयोग कीजिए और परमेश्वर आपके द्वारा लोगों को अपने राज्य में लाएगा। Whatever gift God has given you, परमेश्वर ने आपको जो भी वरदान दिया है, He wants you to use it so that by any means some will be saved. वो चाहता है कि आप इसका प्रयोग करें ताकि किसी भी तरह कोई न कोई उद्धार प्राप्त कर ले। The lepers said to one another, कोढ़ियों ने एक दूसरे से कहा, this is a day of good news, ये आनंद के समाचार का दिन है and we are not doing right. और हम ठीक नहीं कर रहे हैं। We cannot keep it to ourselves. हम इसे अपने तक ही सीमित नहीं रख सकते। It is not right when we focus our energy, our activities, and our money all on ourselves. जब हम अपनी शक्ति, अपनी गतिविधियां और अपना पैसा सब अपने आप पर ही केंद्रित कर देते हैं तो ये ठीक नहीं है। While out there, millions of people are starving spiritually. जबकि वहां लाखों लोग आत्मिक रूप से भूखमरी झेल रहे हैं। The last words of Jesus to the disciples before he was ascended into heaven were not, यीशु के स्वर्ग पर उठाए जाने से पहले शिष्यों से उसने ये नहीं कहा, go and conduct seminars on how to get along with each other, कि जाओ और सभाएं करो कि एक दूसरे का साथ कैसे दें, or go and spend your time on improving yourself, या जाओ और अपने आप में सुधार लाने में समय बिताओ, or go and work hard on how to be accepted by society.
या जाओ और समाज में स्वीकार किए जाने के लिए कठिन परिश्रम करो, or go and form committees and study the subject. या जाकर समितियां बनाओ और विषय का अध्ययन करो। No. नहीं। Matthew 28:18, Jesus said, मत्ती रचित सुसमाचार 28:18 में यीशु ने कहा, Go and make disciples of all nations. जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। In Mark 16:15, Jesus said, मरकुस 16:15 में यीशु ने कहा, Go and preach the gospel to the whole creation. जाओ और संपूर्ण सृष्टि में सुसमाचार का प्रचार करो। In Luke 24:48, Jesus said, लूका रचित सुसमाचार 24:48 में यीशु ने कहा, You are my witnesses. तुम मेरे गवाह हो। In John 20:21, Jesus said, यूहन्ना 20 अध्याय के 21 पद में यीशु ने कहा, As the Father sent me, even so send I you. जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा, मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। In Acts 1:18, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 पद में Jesus said, यीशु ने कहा, You shall be my witnesses in Jerusalem, Judea and Samaria and the end of the earth. तुम यरूशलेम, यहूदा, सामरिया और सारी धरती पर मेरे गवाह होगे। This is a day of good news and we are not doing right. ये खुशखबरी का दिन है और हम ठीक नहीं कर रहे हैं। Let's go and tell the good news to everyone who would listen. आओ चलें और उस प्रत्येक व्यक्ति को खुशखबरी सुनाएं जो सुनता है। The Bible said that when the good news was announced by these unlikely evangelists, बाइबल कहती है कि जब इन असंभव सुसमाचार प्रचारकों ने खुशखबरी की सूचना दी, all the people ran out and in the process they trampled the general underfoot. तो सब लोग बाहर की ओर दौड़े और इसी दौरान उन्होंने सेनापति को अपने पैरों तले रौंद दिया। He saw it but could not experience it. उसने ये देखा लेकिन इसका अनुभव नहीं कर पाया। My listening friends, as we bring this whole series to a close, please listen carefully. मेरे श्रोता मित्रों, जब हम इस पूरी श्रृंखला को समाप्ति पर ला रहे हैं, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। To those of you who are being challenged afresh today by the urgency of the message of sharing the gospel, आज आप में से जिनको सुसमाचार बांटने के संदेश की अति आवश्यकता के द्वारा नए तरीके से चुनौती मिल रही है, I hope that you will pray that God will renew the desire in your heart to share the good news. मैं आशा करता हूं कि आप प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर शुभ समाचार बांटने की इच्छा को आपके हृदय में फिर से नया कर दे। Anyone listening who might be cynical and unwilling to believe the message of salvation, कोई ऐसा व्यक्ति सुन रहा हो जो कड़वे स्वभाव का हो और उद्धार के संदेश पर विश्वास करना नहीं चाहता, you can turn around and be saved from the pending judgment. तो आप वापस मुड़कर आने वाले न्याय से बच सकते हैं। Or you may be a person who has been sitting on the sidelines. या आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो अब तक गुमनामी में जी रहे हैं। You have been indifferent until now, अब तक आप निराश रहे हैं, but you heard the voice of God today. लेकिन आज आपने परमेश्वर की आवाज को सुन लिया है। You need to give your life over to Him आपको अपना जीवन उसे सौंपकर and receive His gift of eternal life. उससे अनंत जीवन का उपहार प्राप्त करने की आवश्यकता है। Will you turn to Him क्या आप उसके पास आएंगे and then write to us?